Good morning and welcome to our economics class. In this class we study government budget. In last class we studied what is the meaning of government budget, what are the important features of government budget, then what are the objective of the government budget. In today's class we study components of budget, different types of budget just like revenue budget and capital budget, what are their meanings. In every budget we have some receipts and some expenditure. First we discuss about the budget receipts. Either they are revenue receipts or capital receipts. What is their meaning or differentiation? Then what are the different sources of revenue receipts like tax revenue or non-tax revenue, and capital receipts, borrowing, recovery of loan, disinvestments, all these are the capital receipts. We study all these, but first I like to revise the meaning of budget. Budget means budget is a systematic record of all income and expenditure of the government or estimated income and expenditure of the government for the coming financial year. एक साल में गवर्नमेंट को डिफरेंट सोर्स से क्या क्या रेवेन्यू अर्न होगा, गवर्नमेंट उसको कहां पर स्पेंड करेगी, उसका सिस्टमैटिक रिपोर्ट जो एस्टिमेटेड सिस्टमैटिक रिपोर्ट है हम उसको क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट बजट. अगर गवर्नमेंट बजट की बात करते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट. वी डिस्कस मेनली टू टाइप्स, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट. रेवेन्यू बजट इज द बजट which show the revenue receipts and revenue expenditure of the government for the coming financial year. कि आने वाले साल में गवर्नमेंट को कहां से रेवेन्यू रिसिप्ट्स जनरेट होगी और गवर्नमेंट उस रेवेन्यू रिसिप्ट से क्या-क्या एक्सपेंडिचर्स करेगी. Then we also have the capital budget. It show the what are the capital receipts of the government for the coming financial year and what are the capital expenditure of the government for coming financial year. First we see their meaning. Revenue budget, it deals with the revenue aspect of the government budget. It explains how revenue is generated or collected by the government and how it is allocated among various expenditure heads. Revenue budget has two parts, revenue receipts and revenue expenditure. Just I told you that revenue budget shows the what are the revenue receipts or revenue expenditure of the government, what are the different sources from government is generating revenue receipts and how government spend all these on different type of revenue expenditure. Now we see capital budget. Just like revenue budget, capital budget show the what are the different source of capital receipts and capital expenditure of the government for the coming financial year. कि आने वाले साल के लिए गवर्नमेंट को कहां से कैपिटल रिसीप्ट्स जनरेट होगी और गवर्नमेंट उससे कहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स करेगी. ओके, सो इट शो द कैपिटल बजट. अब ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, उनका क्या मीनिंग है, क्या डिफरेंस है, क्या फीचर्स है, उनको बाद में डिस्कस करेंगे. इन एवरी बजट वी हैव टू कंपोनेंट्स, रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर. कोई सा भी बजट उसके दो कंपोनेंट कंपलसरी, तो रिसिप्ट्स उस बजट में कहां से रेवेन्यू सोर्स जनरेट हो रहा है और दूसरा उसका एक्सपेंडिचर, उससे हम डिफरेंट गुड्स और सर्विस पर कैसे एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं. ओके, सो बजट रिसिप्ट जो गवर्नमेंट का उसके दो तरह के रिसिप्ट्स हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स. दो रिसिप्ट्स हो गए, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स. इन रेवेन्यू रिसिप्ट्स वी इंक्लूड टैक्स एंड नॉन टैक्स. बट फर्स्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स? रेवेन्यू रिसिप्ट रिलेट्स टू दोज रिसिप्ट्स which not create any burden for the government. It means it's not create any liability for the government or no reduce any assets of the government. Actually it's the you can say that short income for the government. अब गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू सोर्स से इनकम जनरेट हो रही है उससे ना तो गवर्नमेंट का कोई एसेट्स कम हो रहे हैं ना गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ रही है. तो हो सकता है शुद्ध इनकम है गवर्नमेंट के लिए फ्रॉम द रेवेन्यू रिसीप्ट्स. अब गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू रिसीप्ट्स हो रहे हैं, फिर रिपीट कर रहा हूं, उससे ना तो गवर्नमेंट के लिए कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है ना गवर्नमेंट के एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं. अब गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू रिसीप्ट्स के क्या सोर्स हैं, दो, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू. दो तरह के हो गए हमारे लिए, तो जो गवर्नमेंट को इनकम टैक्स से जनरेट हो रही है और दूसरा जो नॉन टैक्स से जनरेट हो रही है. बट फर्स्ट इज व्हाट इज द टैक्स. टैक्स क्या होता है? नॉर्मली आप और हम सब टैक्स पे करते हैं, बट टैक्स होता क्या है? अब
according to the meaning, tax is a compulsory payment to the government from individual, household, private sector, etc. without demanding any direct or indirect benefit in return, and it is used for the mass satisfaction of people by the government, और गवर्नमेंट स्पेंड इट फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। सो टैक्स एक तरह का कंपलसरी पेमेंट है, इंडिविजुअल, हाउसहोल्ड पर, बिजनेस फर्म्स पर हमें पे करना ही पड़ेगा, और हम उसके अगेंस्ट किसी तरह के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट्स की डिमांड नहीं कर सकते। तो टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट। दूसरी बात, अब गवर्नमेंट का जो टैक्स कलेक्शन हो रहा है, गवर्नमेंट उस टैक्स को कंट्री के वेलफेयर के लिए, कंट्री की सिक्योरिटी के लिए स्पेंड करेगी, न कि इंडिविजुअल पर्सन के बेनिफिट्स के लिए। तो टैक्स आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, एक तरह का कंपलसरी पेमेंट। अगर हमारा टैक्स लायबिलिटी बन रही है तो हमारे को टैक्स गवर्नमेंट को पे करना ही पड़ेगा, हम उससे नहीं बच सकते। इट्स अ कंपलसरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट विदाउट डिमांडिंग एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट्स। हम टैक्स के अगेंस्ट किसी भी तरह के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट्स की डिमांड नहीं कर सकते। मान लीजिए मैं इनकम टैक्स पे कर रहा हूं, तो नहीं, मेरे घर के आगे रोड बनेगा तब मैं टैक्स दूंगा, प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। ये कंपलसरी पेमेंट है, आपको पे करना ही पड़ेगा, आप उसको देने से मना नहीं कर सकते। और प्रैक्टिकली आपने देखा होगा, अगर कोई पर्सन टैक्स नहीं पे कर रहा है, उसकी टैक्स लायबिलिटीज बन रही है, तो गवर्नमेंट उससे कंपलसरी टैक्स एक तरह से बोल सकता है छीन लेती है, डायरेक्ट डालती है बोलते हैं। तो गवर्नमेंट कहता है उससे कंपलसरी वे में उस टैक्स को छीन लेगी, तो कंपलसरी पेमेंट है, उसको देना ही पड़ेगा। और जब टैक्स की बात करते हैं मेनली, तो टैक्स दो तरह का है हमारे पास, एक तो डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स पहले आपने सुना होगा जीएसटी, और डायरेक्ट टैक्स का सबसे फेमस एग्जांपल का पॉपुलर एग्जांपल है इनकम टैक्स। सो अगर हम टैक्स की बात करें, व्हाट इज द टैक्स अकॉर्डिंग टू द बुक? टैक्स रेवेन्यू। Tax is the compulsory payment made by people and companies to the government without reference to any direct benefit in return. It has two aspects. Tax is compulsory payment. It means no one can refuse to pay the tax. Second, tax receipts are spent by the government for common benefit of the people in the country. Just I told you, these are the two important features. Now, tax can be divided into two parts. Direct tax and indirect tax. What are direct tax? Direct tax refer to tax that are imposed on property and income of individual and companies and are paid directly by them to the government. It's imposed by the government on property and income of individuals and companies, and these are directly paid by them to the government. Okay. In the case of direct tax, liability to pay the tax and its burden both will fall on the same person. मतलब टैक्स पे करने को लायबिलिटी और उसका बर्डन दोनों सेम पर्सन पर होगा। कोई भी पर्सन इसके बर्डन को किसी अदर पर्सन पर शिफ्ट नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए किसी पर्सन पर इनकम टैक्स लायबिलिटीज आ रही है, अब इनकम टैक्स उसके ऊपर बन रहा है, तो उसको पे करने की लायबिलिटी उसकी है, अब वो उसको किसी अदर पर्सन के ऊपर वो शिफ्ट नहीं कर सकता। सो इट इज द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। देयर आर few example of direct tax: income tax, corporation tax, interest tax, wealth tax. wealth tax को मैंने रिमूव कर दिया बाद में, debt duty, capital gain tax, etc. So all these are the direct tax. Now we see what are indirect tax. Indirect tax are those tax which are imposed by the government mainly on our consumption expenditures. And in the case of direct tax, liability to pay the tax and its burden both will on the different persons. We can transfer its burden on the other persons. Indirect tax के केस में क्या होता है कि हम इसके burden को other person पर easily transfer कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल सर्विस टैक्स, अगर हम किसी रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, हम डिनर एंजॉय कर रहे हैं या लंच एंजॉय कर रहे हैं, तो हमारी जो बिलिंग आ रही है हमारे को उस पर 5% जीएसटी पे करना पड़ रहा है। अब उसको पे करने की लायबिलिटी किसकी है? रेस्टोरेंट ओनर की। और उसने क्या करा, उसको बिल के अंदर ऐड करके कस्टमर पर ट्रांसफर कर दिया, और फाइनली कौन पे कर रहा है? कस्टमर। सो इट इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। इन द सिमिलर वे बहुत सारी सर्विसेज पर गवर्नमेंट ने जस्ट लाइक कोचिंग सर्विसेज 18% सर्विस टैक्स लगा रखा है। अब मान लीजिए किसी कोर्स की फीस 50,000 रुपए है, तो उसके
क्या हो गया, सर्विस टैक्स जो उसको पे करना पड़ेगा। अब टैक्स पे करने की लायबिलिटी किसकी है, कोचिंग ओनर की, बट फाइनली वो किस पर ट्रांसफर हो गया, स्टूडेंट पर। सो इट इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जनरली गवर्नमेंट इंपोज करती है गुड्स एंड सर्विसेज पर, और इनडायरेक्ट टैक्स के केस में क्या हो गया, इसकी लायबिलिटी और बर्डन दोनों डिफरेंट पर्संस पर होते हैं। नाउ वी सी विद द हेल्प ऑफ बुक इनडायरेक्ट टैक्स। Indirect tax refer to those taxes which affect the income and property of individuals and companies through their consumption expenditure. They are imposed on goods and services. आपको याद होगा गवर्नमेंट ने डिफरेंट जो इनडायरेक्ट टैक्स को मर्ज करके सिंगल टैक्सेशन सिस्टम अडॉप्ट किया, इट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। The liability to pay the tax and actual burden of the tax lies on different persons. It can shift to another persons. For example, in case of GST, the liability to pay tax to the government is on sellers, but actual burden is on consumers because seller collect the GST from them. So the burden of indirect tax can be shifted to other person. The best example of indirect tax is GST because different other taxes are merged in GST. Second, if we discuss its features, we can avoid the indirect tax. How we can avoid? If we are buying a commodity in which government is not charging the indirect tax or GST, we can avoid it. For example, indirect tax can be avoided. Indirect tax are compulsory payment, but then can be avoided by not entering into those transactions which call for such taxes. For example, consumers may save tax by purchasing khadi gram udyog item as there is no indirect tax on khadi items. मतलब हम गुड्स को कंज्यूम कर सकते हैं कि जिनके ऊपर गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज नहीं कर रही, जीएसटी चार्ज नहीं कर रही, तो एक तरह से हम इनडायरेक्ट टैक्स को अवॉइड कर सकते हैं बाय परचेजिंग दोज गुड्स ऑन विच गवर्नमेंट इज नॉट चार्जिंग एनी जीएसटी। ओके, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है? जब मैं आपको पहले बोला, जब हम डिफरेंसेस बनाते हैं तो हम सबसे पहले लेते हैं बेसिक और डिफरेंस। इंपैक्ट डायरेक्ट टैक्स आर लेविड ऑन इंडिविजुअल एंड कंपनीज। किस पर लग रहा है डायरेक्ट टैक्स? इंडिविजुअल एंड कंपनीज। इनडायरेक्ट टैक्स आर लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। सेकंड, शिफ्ट ऑफ बर्डन। द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। इट मींस liability to pay the tax and burden both on the same person in the case of direct tax. The burden of indirect tax can be shifted. It means liability to pay the tax and its burden will be on different persons. Nature, they are generally progressive in nature. तो direct tax से क्या होता है? Progressive means जैसे इनकम क्राइटेरिया इंक्रीज होता जाता है तो डायरेक्ट टैक्स का जो रेशियो, जिसका प्रपोर्शन है वो भी बढ़ता जाता है। जैसे इंडिया के अंदर इनकम टैक्स लेवल, जैसे इनकम लेवल इंक्रीज होगा, गवर्नमेंट ज्यादा क्वांटिटी के अंदर टैक्स चार्ज करती है इनकम टैक्स। तो ये क्या हो गया? प्रोग्रेसिव। अब प्रोग्रेसिव क्यों अडॉप्ट किया जाता है कि इसका जो बेनिफिट्स हैं, पुअर पर्सन पर टैक्सेस कम होता है और रिचर पर्सन पर टैक्सेस ज्यादा होता है। इनडायरेक्ट टैक्स दे आर जनरली प्रोपोर्शनल इन नेचर। ये क्या होता है? प्रोपोर्शनल, और इसका जो इंपैक्ट होता है रिच और पुअर पर्सन दोनों पर सेम होता है। जैसे मान लीजिए किसी एक सर्विस पर गवर्नमेंट ने 18% जीएसटी चार्ज करा, अब उसका बर्डन सेम है। अगर कोई रिच पर्सन परचेज कर रहा है तभी वो 18% पे करेगा, अगर पुअर पर्सन परचेज कर रहा है तभी वो 18% की उसको पे करेगा। कवरेज, जो डायरेक्ट टैक्स है उसका कवरेज कम होता है बिकॉज ऑफ इट्स नेचर। दे हैव लिमिटेड रीच एज दे डू नॉट रीच ऑल द सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी। जिस पर्सन की जो इनकम टैक्स लायबिलिटी बन रही है उसकी इनकम गवर्नमेंट ने जो लेवल डिसाइड करा अगर उससे ज्यादा है तभी वो इनकम टैक्स पे करेगा, अदरवाइज नहीं। Indirect tax, they have a wide coverage as they reach all the section of the society. जो indirect taxes है उसका कवरेज ज्यादा है because each reach every person who buy the commodity. जैसा कोई commodity परचेज करता लिखा होता है inclusive of all taxes. तो जितने गुड्स आप कंज्यूम कर रहे हो मेनली उस पर कहीं ना कहीं डायरेक्ट टैक्स चार्ज हो रहा है, तो इनडायरेक्ट टैक्स का जो कवरेज है वो ज्यादा है। So in today's class we study what are the components of budget, what is revenue budget and capital budget. Then we discuss budget receipts and first we discuss revenue receipt, its meaning. In revenue receipt we discuss only tax revenue.
In the next class we see what are non-tax revenue and what are capital receipts, what are the different types of capital receipts, borrowing, disinvestment, recovery of loan. We study all these in the next class. Thank you.